Assalamualaikum dear audience, welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So today we are going to discuss kingdom fungi and the characteristics of fungi in detail. As in previous video we discussed the basic structure and importance of fungi, means what are the basic structures, how fungi are composed of, and how fungi are important for us and for rest of species. So in this lecture we will study a detailed description regarding fungi and their characteristics as well, and how fungi act or play their role in our environment. So we will discuss first. We will go for a fungi characteristics like vegetative structure, reproductive structure, and major groups of fungi as well. Some of them we already discussed in advance. So fungi are placed in separate kingdom called the kingdom fungi. एक तो बात ये इंटरेस्टिंग है, पहले इनको प्रोटिस्टा में प्लेस किया जाता था, बट अब इनको एक सेपरेट इंडिपेंडेंट, जब से 7 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और फिर 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया रॉबर्ट विटकर की तरफ से, तो फिर क्या हुआ कि फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में प्लेस कर दिया गया. So characteristics of fungi we will discuss, means what are the major characteristics of fungi. Fungi do possess the first one, like fungi act as a decomposer, means this one is a very important application of fungi as well. Fungi decomposes all the substances, okay, or organic or inorganic substances as well. You already observed in your surroundings, like once you have some organic or inorganic materials or food items or a lot of plants, or we can say rest of contaminants, once fungi will grow upon them, fungi will kill them, and finally fungi will decompose them into their parts, and we can say fungi acts as a clearing agent as well for our environment. Fungi decomposes all sorts of we can say all sorts of such materials which are creating even harmful impacts upon human health or human life as well. So fungi usually decomposes all of them. So fungi are internal or external parasites. They could be internal parasite and they could be external parasite. Like predators, they can act as a predators and they capture like roundworms. Fungi roundworms को capture भी कर सकते हैं by using their hyphae, by extending their hyphae. Usually they will be acting on roundworms to kill them and to use them and to get the nutrients from them. Predaceous fungi feeding on a nematode roundworm. तो ये predaceous fungi means predator का मतलब होता है किसी का शिकार करने वाले. तो fungi क्या करती हैं कि जब fungi grow कर रही हैं, अगर क्योंकि you people know in a moisty soil sometimes there are roundworm habitat as well, means roundworm usually live in the moisty soil. So once hyphae will be penetrating into a moisty soil, so usually they will find a roundworm as well or a nematodes, so they can get a chance to penetrate inside the roundworms and to decompose or digest them and use as an energy source. So this is actually a phenomena. Some are edible while others are poisonous. So some you can see over here, all these fungi are poisonous, which can cause even diseases to human beings if someone will eat them. ये जितनी भी फंजाई आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, इसमें क्लब फंगस भी हैं, कुछ एस्कोमाइसीड्स भी हैं, और कुछ जो एडिबल हैं वो भी हम बात कर लेते हैं. सो दीज फंजाई आर एक्चुअली एडिबल्स, ओके. If you will eat them, you will be getting enough energy resources, like glycogen will be a major constituent which you can obtain from edible funguses as well. So this is another character of fungi. और फिर हम प्रोड्यूसेस बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स. तो फंजाई में सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं और एसेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं, और फिर जो स्पोर्स हैं वो बहुत सारी शेप्स में भी आते हैं, बहुत सारी उनकी फॉर्म में होगी. जैसे हम ज़ूस्पोरेंजियम की बात करें, यहाँ पे एक फंजाई के लाइफ साइकिल की एक्चुअली बात की गई है. जैसे हम लोगों के पास एक मेच्योर फंजाई है, तो मेच्योर फंजाई के ऊपर स्पोर्स लगे होते हैं. जैसे कोनिडियोफोर है, तो ये कोनिडिया है, उसके ऊपर स्पोर्स मौजूद हैं. यू कैन सी हियर कोनिडियोफोर है, फिर इसके ऊपर मेटाक्ले हैं, और फिर हैं स्टिग्मेटा हैं, और फिर कोनिडिया लगे हुए हैं. कोनिडिया जब कहीं भी फेवरेबल प्लेस मिलती है इनको, तो ये फिर ग्रो करते हैं. ये अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो एक ज़ूस्पोरेंजियम है, फिर उसमें ज़ू स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स कोई फेवरेबल प्लेस उनको मिलेगी, वो ग्रो करेंगे, ग्रो करते करते फिर वो एक स्पोरेंजियम बन जाएगा, और स्पोरेंजिया से फिर स्पोर्स रिलीज़ हो जाते हैं. स्पोर्स रिलीज़ होंगे तो फिर हम लोगों के पास एक हाइफी बनना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हाइफी फर्दर मेच्योर होंगे. हाइफी के ऊपर फिर दोबारा उसके ऊपर स्पोरेंजिया बनेगा, और स्पोरेंजिया के ऊपर दोबारा फिर स्पोर्स बनेंगे. तो दिस इज एक्चुअली अ लाइफ साइकिल ऑफ अ फंजाई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, ओके.
ग्रो बेस्ट इन वार्म और मॉइस्टी एनवायरनमेंट, तो जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे भी फंजाई ग्रो करता है, और इसके अलावा मॉइस्ट एनवायरनमेंट भी फंजाई ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी स्टडी फंजाई, और फंगीसाइड इज़ अ केमिकल यूज टू किल फंजाई। तो कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फंजाई को किल करने के लिए, ठीक है। और फंजाई को किल करने के लिए वो ऐसे वो केमिकल्स, जैसे हम लोगों के पास ग्रीन गॉड की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, कुछ हम लोगों के पास प्लांट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं टू किल द फंजाई, क्योंकि फंजाई प्लांट्स के साथ भी एसोसिएशन जब बनाती हैं, माइक्रोराइजल एसोसिएशन की बात हम करते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि समटाइम्स जो फंजाई हैं उनकी डेथ भी हो सकती है। ओके, फंजाई इंक्लूड पफ बॉल्स, यीस्ट, इनकी ये एग्जांपल्स हैं, मशरूम, toadstools, rust, mud. These fungi are also causing diseases as well, to some disease to plants. ओके, एंड फर्दर मोल्ड्स भी हैं फंजाई की एग्जांपल। और एंटीबायोटिक की बात करें, एंटीबायोटिक्स में जो यूज़ है फंजाई का, तो उसमें हम कहते हैं कि पेनिसिलिन है, जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ की जाती है, जिससे हम लोग क्या, जो पेनिसिलियम है फंजाई, उससे हम पेनिसिलिन बनाते हैं। तो ये पेनिसिलियम का मोल्ड है, आप देख सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया गया था एक पेट्री डिशेस पे, और जब हमने फंजाई यहाँ पे ऐड की तो पेनिसिलियम ऐड की थी, तो इसने क्या किया कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना स्टार्ट कर दिया, और ये एरिया क्लियर हमारे पास नज़र आना स्टार्ट हो गया। तो इट्स मीन वी कैन यूज़ fungi to prepare antibiotics as well in the form of penicillin. So this is a puff ball, means this fungi is causing a disease, and this one is a dangerous to human being as well. Okay, further वेजिटेटिव और नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अच्छा, फंजाई की जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि फंजाई की अगर स्पोर्स के अलावा फंजाई की हाइफी भी कहीं पे गिर जाएं, तो वो भी जब उनको फेवरेबल प्लेस मिले, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हों, जहाँ पे वाटर मौजूद हो, जहाँ पे सॉइल फर्टाइल हो, तो दे विल आल्सो गेट अ चांस टू ग्रो। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी जो फंजाई के हैं वो भी बेसिकली या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द फंजाई, कि फंजाई के जो बॉडीली पार्ट्स हैं वो कहीं पे ग्रो करें, गिर जाएं और उनको फेवरेबल प्लेस मिले, और फिर वो ग्रो करके पूरे एक फंजाई में कन्वर्ट हो जाएं। तो इसका मतलब है कि फंजाई कैन आल्सो रिप्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ और इन द वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल। So hyphae, tubular hyphae, one continuous cell filled with a cytoplasm and a nucleus। तो ये hyphae की एक्चुअली स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि continuous cell होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, उसमें न्यूक्लियाई मौजूद है, मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं। हार्ड सेल वॉल ऑफ काइटिन आल्सो इज आल्सो इन इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन, के जिस तरह इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो एक्स्ट्रा जो उनका ढांचा होता है बॉडी का, तो वो भी हम लोगों के पास काइटिन का बना होता है, पॉलीसेकेराइड का। तो इसी तरह हाइफी का भी हैं, पॉलीसेकेराइड से बने हुए हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं इनमें, और ट्यूबुलर शेप में होते हैं, और एक कॉन्टीन्यूअस सेल होता है। तो दिस इज एक्चुअली अ हाइफी स्ट्रक्चर। सो इन नेक्स्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर, वी विल डिस्कस फर्दर। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।